So, Assalamu alaikum. Welcome to the sixth episode of Drone, a podcast by Janus. वैसे इतना podcast scene है भी नहीं. So today I have two guests with me. Both are from my educational institute जिसका हम नाम नहीं लेते. So ये दोनों academy के environmental clubs हैं. And there are other organizations related to environmental causes जिसके part हैं like Fridays for Change या Fridays for Future. I don't know exactly. Fridays for Future Pakistan. Fridays for Future Pakistan. Okay, so they are Jafar and Mubin. So today we'll be talking about environmental issues facing in Pakistan, faced by Pakistan and the solutions. एक layman को समझाने के लिए basically. I'll refer to the questions I have already क्योंकि मैं अभी तक ना anchor हुआ हूँ ना सियासतदान के कुछ भी बकवास कर दूँ तो. Perfect. I have some. तो पहला सवाल है जाफर. I don't know Mubin if you're also an environmental engineering student, but Jafar का मुझे पता है. And I am an environmental engineer as well. Okay, best है दोनों ही हो. So good. So scene ये कि environmental engineering है क्या? ना मुझे इतना पता है ना I'm sure मेरे दोस्तों को ही नहीं पता. जब तक मैं academy नहीं आया था मुझे पता भी नहीं था the subject existed. O levels वगैरह में एक environmental management था but वो काफी theoretical था. और उसको इतना लोग ध्यान देते नहीं थे. So what is this subject? Jafar, would you like to answer? Yeah, should I? I'll answer the theoretical portion और मुझे मूवी ने इसका बता देगा तो मैं इसके इंजीनियरिंग से क्या एलिमेंट है. तो बेसिकली सर तुमने बोला है कि ए लेवल्स में पढ़ाते हैं environmental sciences, environmental management. तो a fun describing this is कि एक शो था Avatar the Last Airbender. तो उसमें they talk about 4 things: earth, fire, air and water. Now, these 4 things are, these are basically 4 elements of the environment as well as for, except for fire की जगह energy देती है. तो environmental engineering में हम ये करते हैं that water treatment, sanitation, sewage management, etc. तो ये एक पूरी side आती है. Then moving on to air. Air में तुम्हें नजर आता है आजकल air pollution बहुत ज़्यादा है. की significance, air quality management, air की ambience testing करना एक वो आ जाता है साथ साथ ही. Then moving on to energy, we move into renewable sources of energy जिसमें solar आती है. वो बाद में जाके हम specialize करते हैं इनमें लेकिन basically उसके भी हमें साइड से हिंट आती है. And then comes ground. उसमें आती है तुम्हारी soil management. Soil किस तरह होता है, तुम्हारी soil contamination होती है. इसमें elements आ जाते हैं agriculture वगैरह के भी आ जाते हैं. और साथ साथ वाइल्ड लाइफ वगैरह आ जाती है. इकोलॉजिकल मैनेजमेंट मेजरली पूरी दुनिया के तुम्हें सारा एनवायरनमेंट नजर आता है, ट्रीज वगैरह उसमें फोकस करते हैं. तो बेसिकली विद दिस डिग्री वी लर्न अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मेजर कॉजेस ऑफ पोल्यूशन फॉर दीज एंड हाउ दे आर डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. अब इसके इंजीनियरिंग पोर्शन है, मैं चाहता हूँ मुबीन डिस्क्राइब करे हाउ इंजीनियरिंग इज एडेड इनटू ऑल ऑफ दिस. Exactly. तो हर theoretical side के साथ एक engineering portion आ जाता है. So that is what we are studying in environmental engineering. So basically, as Jafar said, we have all these 4 elements. In चारों के चारों elements में हम अपनी engineering apply करते हैं. We have all these 4 types of pollution. तो हम engineering solutions provide करते हैं these problems. For example, let's take water. हमारे पास साफ पानी आता है जो हमें लगता है कि साफ है लेकिन वो साफ नहीं होता है. देयर काफ़ी कंटामिनेंट्स होते हैं स्पेशली आजकल के टाइम में. तो उसके ट्रीटमेंट हम करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट हम सीखते हैं. उसके वाटर ट्रीटमेंट के जो डिज़ाइंस हैं वो हम बनाते हैं. एंड आफ्टर दैट जब आपका पानी यूज़ हो जाता है एंड द वेस्ट वी हैव फ्रॉम इट, तो फिर वो वेस्ट भी ट्रीट करना हम सीखते हैं. एंड हाउ वी कैन मेक द मशीन्स दैट वाटर. तो अदर देन दैट एयर की बात हो गई. वो एयर में वी हैव अ लॉट ऑफ स्मॉग प्रोडक्शन. स्मॉग इज बेसिकली जिसको लेमैन टर्म्स में स्मोक प्लस फॉग होता है. तो नॉर्मली होती है लेकिन मसला इधर स्मोक का आ जाता है. तो स्मोक कहाँ से आती है? इंडस्ट्रीज हो गई, आपकी ट्रैफिक हो गई. तो इसमें भी हम अपनी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज की जो मेजर एफ्लुएंट्स होते हैं एयर में जो कि स्मोक वगैरह होती है, हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कॉल्ड स्क्रबर्स. ठीक है, वो आपने सुना होगा कैटालिटिक कन्वर्टर ही काम करते हैं. जो आपके स्मोक वगैरह होते हैं उसको ट्रैप कर देते हैं और
cleaner air goes into the environment. ठीक है, तो इसी तरह आ जाती है सॉइल में आपके जो कंटामिनेंट सीप इन करते हैं उसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं. There are multiple biological solutions as well as chemical solutions we have. तो उसके अलावा what was am I missing a fourth element? Fire से हम incineration के तौर for example. लेट्स से कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से भी इंजीनियर्ड लैंडफिल नहीं है जहाँ तक मेरे नॉलेज में है. हम उनको लैंडफिल कहते हैं लेकिन वो लैंडफिल होता नहीं है, जस्ट अ डंपिंग साइट. ठीक है, हम जो भी कचरा ढेर सारा मिलता है उधर जाके फेंक देते हैं. कोई सेग्रीगेशन नहीं होती, कोई हम रॉ मटेरियल रिसाइकल नहीं करते, जो भी है अच्छी चीजें बुरी चीजें सारी जाके उधर ही फेंक देते हैं. हमारे हॉस्पिटल का वेस्ट जाके उधर जाके गिरा होता है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस एनिमल्स ऑफ कोर्स. को हम किस तरह ट्रीट करते हैं, लैंडफिल इंजीनियरिंग, लैंडफिल साइट्स किस तरह बन, और उसमें से जैसे जाफर ने बोला रिन्यूएबल एनर्जी, हम लैंडफिल साइट से भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. वो जो कचरा हम इंसिनरेट करते हैं हाई टेम्परेचर पे और वहां से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं. और अमेरिका में तो अप टू 1000 मेगावाट्स की एनर्जी जनरेशन होती है फ्रॉम लैंडफिल्स ओनली, which is a huge number. पाकिस्तान को तो पता नहीं है, बस कचरा जाके लैंडफिल साइड में डंप कर दो, बस दैट्स इट. तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज अबाउट, हम हर चीज़ों को केटर करते हैं. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सिर्फ मशीन वगैरह नहीं है. वी स्टडी अबाउट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, कि इसमें पॉलिटिक्स किस तरह आ जाती है, इसमें इकोनॉमिक्स किस तरह आ जाती है, और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरह प्ले करते हैं. सो हम ये सारी चीज़ों को देख के पढ़ के एंड वी प्रोवाइड सॉल्यूशंस. ओके, सो दूसरा मेरा सवाल and रिलेटेड towards the टू end, दिस कि ये कितनी फर्टाइल फील्ड है, क्योंकि बाकी इंजीनियरिंग एज आई सी के हर कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जा रहा है, काफ़ी सेचुरेशन है, एंड दिस सीम्स काफ़ी फ्रेश. तो कितनी फर्टाइल और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लिविंग इन पाकिस्तान अगर आप इसको मतलब अडॉप्ट करो. अब्दुल्ला, इसमें as मुझे भी पहले नहीं लगा था कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कोई इतनी अच्छी फील्ड है. मैं भी आ गया था बिकॉज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इटसेल्फ अपील टू मी. ठीक है, लेकिन मुझे उसका स्कोप वगैरह कुछ नहीं पता था. अगर आके देखो ना, एनवायरमेंटल इज बूमिंग, सैचुरेशन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और एनवायरमेंटल की सबसे ज्यादा जरूरत है आजकल. ठीक है, आपको पता होगा कि कोविड-19 के क्राइसिस में भी हेल्थ एंड सेफ्टी के आ जाते हैं इशू, और आपके बाकी पोल्यूशन वैसे किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और इसके अलावा भी सही है. तो इट्स एक्चुअली अ वेरी बूमिंग फील्ड. मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज जस्ट वन फील्ड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज जस्ट वन फील्ड ऑफ इट. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हर जगह को टच करती है, आपके बिजनेसेस को टच करती है, कोर इंजीनियर्स को, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट को टच करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट इसमें आ जाता है. इट्स एनकम्पसिंग एवरीवेयर. तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके एनवायरमेंटल इंजीनियर जॉबलेस कहीं रहे, अल्लाह ना करे, और होपफुली. तो इट्स एक्चुअली अ वेरी वास्ट फील्ड. जाफर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? You study BPA, right, Abdullah? No, psychology. Psychology, right. तो हमारी जो अकेडमी है उसमें दे आल्सो स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें आपको पॉलिसी मेकिंग भी समझाते हैं. तो जो हमारी फील्ड है इसमें मुबीन ने मेंशन किया था कि हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं एनवायरमेंटल की. तो आगे से फ्रॉम हियर वी आर आल्सो टॉट टू स्टडी एनवायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग, एनवायरमेंटल लॉ तक. तो हमें ना इस फील्ड से होता है कि इट्स बेसिकली लाइक जो तुम एक सेट देते हैं ना ए लेवल्स में कि आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप जाएं ब्रॉडर, तो बाकी फील्ड्स हैं ना वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं एज सून एज यू गेट इनटू यूनिवर्सिटी. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ये होता है कि अभी हमसे है ना, वी आल्सो लर्नड माइक्रोबायोलॉजी, वी हैव लर्नड लॉ, वी हैव लर्नड पॉलिसी मेकिंग. तो आफ्टर वी ग्रेजुएट हम, हाँ, तो आफ्टर वी ग्रेजुएट वी कैन एक्चुअली गो इनटू पॉलिसी मेकिंग, एनवायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग. वी कैन गो इनटू डेवलपमेंट स्टडीज जो बेसिकली आती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. वी कैन गो इनटू एनवायरमेंटल लॉ एज वेल. तो बेसिकली व्हाट दिस डिग्री डज इज कि आपको ना हर तरह की फील्ड में आपको घुसाने का मौका देती है. यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रांग इनफ कि आप अपनी कैपेबिलिटी फाइंड कर लें, व्हाट यू स्पेशलाइज इन, फिर उसमें आप चल जाएं आगे जाके. You told that to Hasham. See, I think jokes on him. He didn't choose it. आगे चला गया. हाँ. ओके, हाँ, तो दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो अभी कोई मतलब काफ़ी जगह हम सुनते हैं कि 20 साल रह गए हैं इंसान अगर मतलब
सही हो जाए तो अभी भी बचा सकते हैं, कुछ कहते हैं 5 साल। तो हाउ सीरियस इज द थ्रेट, कितना टाइम है जिसके बाद इररिपेरेबल डैमेज होगा? तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है हम्म यार, इसके बारे में ये है दैट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दैट। अभी यह है कि जो क्लाइमेट चेंज है, इट्स नॉट अ थ्रेट, इट्स बेसिकली अ फैक्ट, एंड वो इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। अभी करंटली मैं इस्लामाबाद में हूँ, एंड इस टाइम पे जो बारिशें हैं वो होनी नहीं चाहिए। Monsoon basically comes from Bangladesh वाली साइड, राइट, एंड दैट कम्स बाय द एंड ऑफ जून या मिड ऑफ जून। आजकल जो आ रही है ना बारिशें, फ्रॉम मीटरोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, आई चेक रिसेंटली, दे आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, फ्रॉम द नॉर्दर्न एरिया से पीछे वाला इलाका जो है रशियन सोवियत स्टेट्स से पानी थी। तो बेसिकली पूरे जो वेदर पैटर्न्स है वो थोड़े चेंज होना शुरू हो गए हैं। दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल दैट क्लाइमेट चेंज इज एक्चुअली अफेक्टिंग अस नाउ। ये बारिशों मूविंग से ऑन फ्रॉम काफी दैट, इसके नुकसान आया नेगेटिव वैसे। इम्पैक्ट्स अब हम बताएं। हाँ, वो because you didn't आपका एक्सपेक्ट नहीं थे। अगर आप एग्रीकल्चर में देखें, बरानी लैंड्स होते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जहाँ वो अपने वो क्रॉप्स लगाते हैं, और कुछ टाइम पे क्रॉप्स हटा देते हैं। तो अभी ये टाइम था जहाँ उनकी सॉइल होता है वो बेसिकली फर्टाइल होता है थ्रू नेचुरल इरोजन को रुकती है। थोड़ा बहुत एलुवियल प्लेन्स में ना आना शुरू से न्यूट्रिएंट्स, ये थोड़े फैंसी वर्ड्स हैं, लेकिन बेसिकली मतलब ये है कि जमीन न्यूट्रिएंट हो। हाँ, ये अंडरस्टूड है काफी। जाफर, योर इंटरनेट। I'll take over। जाफर ये कह रहा था कि आपके जो एलुवियल वहाँ पे रिच न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे होते हैं, राइट? तो ये जो एक पैटर्न होता है, सेट पैटर्न होता है एग्रीकल्चर का, ये जो सेट पैटर्न है एग्रीकल्चर का, ये डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है? तो सॉरी कट यू ऑफ जाफर, तुम्हारा इंटरनेट थोड़ा खराब हो गया था, तो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। राइट नाउ हम प्रिडिक्ट कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस, ठीक है? पहले तो हम कहते थे कि एक है कि इस तरह इसके पास जाके हम नो, इट विल बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, लेकिन दैट इज अंडर द कंडीशन कुछ भी ना करें, एंड ये जो अभी हमारा प्रोग्रेस है ना, ये चलता रहे, ठीक है? लेकिन हमने अभी देखा है कि पीपल आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, और लोग एक्चुअली अवेयर हो रहे हैं इसके बारे में, ठीक है? तो वो जो क्राइसिस का ग्राफ है ना, वो शायद प्लेटू कर जाए और फ्लैट हो जाए। और अभी देखा होगा की वजह से सारे घर में बंद हैं, आपकी सारी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, तो उसकी वजह से वेनिस में तो आपको क्या कहते हैं, गंदे पानी में अब तो मछलियां नजर आनी शुरू हो गई हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं आपकी अभी कम हो रही है, लेकिन इससे यही होगा कि जैसे आप एक रबर को खींचते नहीं है, जैसे ये कोविड-19 खत्म हो जाएगी, नहीं रबर वापस दोबारा जाएगी, और जोर से इसकी क्या कहते हैं, विल बी सीइंग पोल्यूशन, क्योंकि अचानक से आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन आई। तो अगर इसी में हम थोड़े कंट्रोल कर पाए तो क्राइसिस, थोड़ी हमारी एनवायरमेंट क्राइसिस कम हो। अदरवाइज गॉड नोज व्हाट हैपेंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स एंड वी कांट रियली प्रेडिक्ट इट। जैसे मैंने एक चीज पूछनी थी, मैं देख रहा था कि लाइक पीपल आर पोस्टिंग कि इतनी थोड़ी देर में अगर इंसानों ने कंट्रोल किया तो काफी रिमार्केबल चेंज इस तरह शो किया। तो इज इट रियली कि अगर मतलब हम थोड़ा कंट्रोल करें तो काफी ज्यादा चेंज, काफी बेहतरी आ जाएगी? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? आपको पता है लाहौर में आप इंडस्ट्रीज को प्रॉपर एसओपीज जो हमारे डिफाइन हुए हैं उसके ऊपर चलाए ना, तो आपकी स्मॉग की जो प्रोडक्शन होगी ना, दैट्स वो काफी कम हो जाएगी, ठीक है? जस्ट फॉर कंट्रोलिंग इट। ट्रीटमेंट की तो बात ही नहीं हुई अभी तक। अगर हम ट्रीटमेंट पे भी आ जाएं कंट्रोल के साथ, एसओपीज भी आपके फॉलो हों, जिस तरह के नॉर्वेजियन कंट्रीज में हो रहा है, ठीक है? तो इट कैन easily reduce the crisis, but आखिर में बात आ जाती है ह्यूमन मेंटालिटी पे कि बिल्कुल साथ नहीं देती एनवायरनमेंट के, तो that is what it is। ओके, जाफर कुछ कहना है? अच्छा खैर, थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी डन, और अभी किया क्या जा रहा है? तो मैं बताता हूँ इस सवाल को, मतलब जिस तरह मैंने लिखा था तब मैंने हसन मेरा इंटरनेट लैग कर रहा है, फिर तुम्हारा आई डिडंट हियर द क्वेश्चन। आई थिंक अब्दुल्ला का लैग कर रहा है। ओके, आई लास्ट आई डिडंट हियर द आवाज आ रही है? क्वेश्चन। यस, आ रही है।
तो मैंने हसन मिनहाज का पेट्रियट एक्ट देखा था, उस पर ही डिड 2 or 3 एपिसोड रिगार्डिंग एनवायरमेंटल डैमेज ना, एंड उसमें उसने बताया था जिस तरह हाउ ब्रांड्स आर डिस्ट्रॉइंग इट, हाउ ऑयल कंपनीज आर डिस्ट्रॉइंग इट। इसके अलावा मैंने एक देखा था, हमने एक प्रोजेक्ट किया था रिगार्डिंग फास्ट फूड, तो उसके अंदर एक सेक्शन था एनवायरमेंटल डैमेज एंड इट वाज ह्यूज। तो मैं पूछना ये था कि इंडिविजुअल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अभी तक क्या किया गया है और क्या किया जा सकता है टू ओवरकम दिस थ्रेट। यार यू मीन कि अगर बंदा इंडिविजुअली क्या कर सकता है एज अ पर्सन हाँ, टू कॉम्बैट द एनवायरमेंटल थ्रेट। यस। इसके बारे में एक इनिशिएटिव है जो मुबीन और मैंने रिसेंटली शुरू किया था। इट्स कॉल्ड डक्ट इज एग्जाम्पलो। तो बेसिकली वो हमने इसके साथ ये किया है कि इट्स बेसिकली अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट दे डू इज दैट हम जाते हैं स्कूल्स वगैरह में टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट। अभी ये है कि तुम नोट करोगे कि मोस्ट ऑफ पीपल उनको एनवायरनमेंट क्या होता है, नाम सुने हुए क्लाइमेट चेंज है, लेकिन तुम पूछो क्लाइमेट चेंज के मतलब क्या, लोग कहेंगे कि दरख्त। अभी इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल आइडिया जिसके बारे में ना मोस्ट पीपल, नॉट इवन मोस्ट एनवायरमेंटल इंजीनियर्स नो दैट प्लांटिंग ट्रीज is not going to save climate change, it's not going to protect the earth. So that's basically आइडिया है कि लोगों का अंदाजा नहीं है, उनकी अवेयरनेस नहीं है। दिस इज टर्म कॉल्ड माइंडफुलनेस। अगर आप माइंडफुल हो अपनी चीज़ों के बारे में, आपको अंदाजा हो इससे कि किस तरह आप बेहतर एक्ट करेंगे। कुछ अगर आप अपनी ज़िंदगी में रेगुलर टर्म इस्तेमाल कर लें, जिस तरह एक वर्ड सुना होगा चपरासी। चपरासी is basically a designation in Urdu. It's basically a title of a job. लेकिन हमारी सोसाइटी ने उसको derogatory term बना दी है that it sounds like it's offensive. If a person like me realizes that and I become more mindful about how I say it, so in the future if more people keep on following this trend, that thing will end. Same can be said about the environment. If you're more mindful about the fact कि आपने कचरा है ना वो आपने डस्टबिन से फेंकना है, आपने जो चीज़ें कर आपने अगर बाहर जाएंगे, मेक श्योर यू डोंट यूज प्लास्टिक बैग, यू यूज समथिंग दैट्स मोर रिसाइक्लेबल, ताकि जो आपकी इंडस्ट्री भी है ना वो भी नजर उनका अंदाजा हो जाए कि प्लास्टिक इज नॉट बीइंग वांटेड बाय सोसाइटी, वी वांट समथिंग मोर रिन्यूएबल एंड मोर रिसाइक्लेबल, ताकि वो उनको भी इफेक्ट होना शुरू हो जाए। तो इट्स बेसिकली समथिंग लाइक कि सोसाइटी है ना, इट्स एक चीज़ है मंकी सी मंकी डू। if more people are doing that, more people will follow that. And the thing is that if you influence them that way, ऐसे और लोग कर रहे हैं और लोग ज्वाइन करना शुरू हो जाएंगे। एकेडमी का एक ग्रुप है प्रिटेंडिंग टू बी एन एकेडमी, रिसेंटली शुरू है, उसमें Offer your internet. then post why shouldn't we and have to, जैसे तुम साइकोलॉजी पढ़ते हो उसमें ये होता है कि तुम्हारी ह्यूमन साइकोलॉजी तुमने किस तरीके से अफेक्ट करना है, that they find it entertaining. Abdullah, you're muted. Abdullah, you're muted. Abdullah, you're muted. हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, यस। हाँ, मैं कह रहा था जाफर, तुमने जब बोला था ना प्रिटेंडिंग टू बी एकेडमी, उसके हाँ, बाद काफी लैग आया था, तो वो पार्ट रिपीट कर दो। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा था जिस तरह प्रिटेंडिंग टू बी एन एकेडमी वाला ग्रुप है, उसमें तुम नोट करोगे कि तुम्हारे क्लास के किसी एक बंदे ने मीम पोस्ट की होगी, चाहे किसी को शौक भी ना हो फेसबुक इस्तेमाल करने का, उसने देखा हर कोई कर रहा है तो हम भी करते हैं। तो जैसे तुम साइकोलॉजी पढ़ते हो, ह्यूमन माइंडसेट इज लाइक दिस, यू सी समथिंग दैट्स एंटरटेनिंग, यू गो टुवर्ड्स इट। क्लाइमेट चेंज का पूरा कॉन्सेप्ट इज समथिंग दैट्स वेरी sciencey and it's something that's distant. People don't want to learn about it, but if you use modern techniques, if more people do it, तो obviously तुम्हारी साइकोलॉजी इफेक्ट होती है दैट यू वांट टू फॉलो दैट ट्रेंड। तो अभी अवेयरनेस के लिए होना चाहिए कि पीपल शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट देमसेल्व्स, एंड ताकि बाकी अवाम है ना who are might be on a lower IQ level, who don't understand this, उनके लिए आपने इसको एंटरटेनिंग बनाना है ताकि दे फॉलो इट दैट वे। एग्जैक्टली। तो हमारे इनिशिएटिव भी इसी को ही कहता है कि जो हमारे वोलेटाइल जनरेशन, इट्स आवर यूथ, राइट? तो सबसे इजीली यूथ पे बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, जो हमारे मिलेनियल्स हैं वो थोड़े और स्लो हैं, जो हमारे बूमर जनरेशन है वो थोड़े और स्लो हैं।
बेसिकली वी आर टारगेटिंग द यूथ, द न्यू जनरेशन, ताकि अगर उनको पता हो तो वो अपने फैमिलीज में बता सकें, वो आसपास अपने दोस्तों में बता सकें, क्योंकि सबसे ज्यादा बातचीत भी वही करते हैं और सबसे इजीली अवेयरनेस उन्हीं से ही फैल सकती है। बात तो सही। बस मैं अभी देख रहा था कि काफी मेरे दोस्त गए थे इन द क्लाइमेट मार्च, बट वो खुद इतना डैमेज करते हैं कि मतलब उनका वहाँ जाना ना जाना कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। उसके बाद आई थिंक मेरा एक लास्ट सवाल है, बल्कि नहीं, अब हो गया, यही लिखे थे। तो बाकी कोई मैसेज अगर देना चाहो। हाँ, मार्चेस पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ। मैंने खुद देखा मार्चेस पे बहुत गंदगी मची थी, इवन दो इट वाज फॉर द एनवायरनमेंट, लेकिन होपफुल में भी हम ये इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने एनजीओ की तरफ से कि वी शुड फॉर सस्टेनेबल इन दिस, अपना कचरा अपने पास रखिए, डोंट लिटर एंड बी मोर सस्टेनेबल इन द फ्यूचर। और अपना खाना खुद बनाए, अपना खाना खुद बनाए, स्ट्रॉज ना इस्तेमाल करें। थैंक यू। So thank be you more so much. sustainable, save the environment. It all starts at home. Yep. थैंक यू द टू ऑफ यू। काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा। बट जाफर सीन ये कि अब सपोर्ट ग्रुप में खुद शेयर कर देना, मैं करता हूँ, लोग नहीं देखते। तुम करोगे, सारे देखेंगे। हम दोनों कर देंगे अब्दुल्ला, नो प्रॉब्लम। बेहतरीन है। To all the people in the support group and others, please like, subscribe, and tell us in the comments any other topic that you want us to discuss. Allah Hafiz.